Short sentences of daily use. तुम कहाँ थे? Where were you? बुरी संगत को छोड़ दो। Avoid bad company. तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? What do you mean? वो पूरा बदमाश है। He is out and out now. अगर वो कोशिश करेगा तो आएगा। She would come if she could. हाँ, मेरे सारे दोस्त मेरी मदद करेंगे। All my friends will help me. शोर मत करो। Don't make noise. वो किस टाइप की लड़की है? What kind of girl is she? मुंबई जा चुका है वो। He has gone to Mumbai. वो हमेशा गरीबों की मदद करता है। He always helps the needy. उसने मुझे कुछ समाचार बताया। He told me some news. क्या बात है? What's the matter? क्या तुम गुस्सा हो? Are you angry? रास्ता क्यों बंद है? Why is the road closed? क्या तुम जानते हो Do you know? आपका यहाँ कैसे आना हुआ? What brings you here? मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? What can I do for you? मैं अपना नाश्ता ले चुका हूँ। I have taken my breakfast. हम फिर कब मिलेंगे? When shall we meet again? क्या तुम एक काम करोगे? Will you do one thing? क्या मैं आपका साथ दूँ? Can I accompany you? चलो टहलने चलते हैं। Let us go for a walk. वो कितनी चालाक है। How clever is she? कितनी अच्छी सुबह है। What a fine morning it is. क्या मैं अब जा सकती हूँ? Can I go now? तुम कामयाब हो जाओ। May you success. तुम्हारी उम्र लंबी हो। You may live long. सावधानी से बड़ा कोई दूसरा Care इलाज is नहीं। not cure. गुड। मैं फिर तुम्हें कब मिलूं? When do I meet you again? मैं तुम्हारा चेहरा देखना नहीं चाहती। I don't want to see your face. गुड। मुझे देखने दे वो कब आता है। Let me know when he comes. तुम उसे कब मिलोगे? When will you meet him? गुड। आज कौन सा दिन है? What a day is today. There are still 10 minutes to start movie. Movie start होने में मूवी शुरू होने में अभी 10 मिनट बाकी है. Good. I'm sorry I have taken so much of your time. मुझे खेद है कि मैंने आपका बहुत Okay. बैठ जाओ। Sit down. यहाँ 10 बजे मौजूद रहो। Be here at 10. Do you know Accenture recently laid off more than 19,000 employees? Cognizant laid Ever tried studying for IELTS on your own? You know, I have. It was a struggle. I was Short sentences of daily use. तुम कहाँ थे? Where were you? बुरी संगत को छोड़ दो। Avoid bad company. तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? What do you mean? वो पूरा बदमाश है। He is out and out of rough. अगर वो कोशिश करेगा तो आएगा। She would come if she could. हाँ, मेरे सारे दोस्त मेरी मदद करेंगे। All my friends will help me. शोर मत करो। Don't make noise. किस टाइप की लड़की है? What kind of girl is she? मुंबई जा चुका है वो। He has gone to Mumbai. वो हमेशा गरीबों की मदद करता है। He always helps the needy. उसने मुझे कुछ समाचार बताया। He told me some news. क्या बात है? What's the matter? क्या तुम गुस्सा हो? Are you angry? रास्ता क्यों बंद है? Why is the road closed? क्या तुम जानते हो Do you know? आपका यहाँ कैसे आना हुआ? What brings you here? मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? What can I do for you? मैं अपना नाश्ता ले चुका हूँ। I have taken my breakfast. हम फिर कब मिलेंगे? When shall we meet again? क्या तुम एक काम करोगे?
Will you do one thing? क्या मैं आपका साथ दूं? Can I accompany you? चलो टहलने चलते हैं. Let us go for walk. वो कितनी चालाक है. How clever is she? कितनी अच्छी सुबह है. What a fine morning it is. क्या मैं अब जा सकती हूँ? Can I go now? तुम कामयाब हो जाओ. May you success. तुम्हारी उम्र लंबी हो. You may live long. सावधानी से बड़ा कोई दूसरा Care इलाज is नहीं. not cure. गुड. मैं फिर तुम्हें कब मिलूं? When do I meet you again? मैं तुम्हारा चेहरा देखना नहीं चाहती. I don't want to see your face. गुड. मुझे देखने दो वो कब आता है. Let me know when he comes. तुम उसे कब मिलोगे? When will you meet him? गुड. आज कौन सा दिन है? What a day is today. There are still 10 minutes to start movie. Movie start मूवी शुरू होने में अभी 10 मिनट बाकी है. Good. I'm sorry I have taken so much of your time. मुझे खेद है कि मैंने आपका बहुत वक्त. Okay. बैठ जाओ. Sit down. यहाँ 10 बजे मौजूद रहो. Be here at 10. Do you know Accenture recently laid off more than 19,000 employees? Cognizant laid off more than 12,000 of their Good evening to all. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Fantastic. सब लोग टाइम पे आए हैं और बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ में बात करने के लिए. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Good evening. छान. चला कोण बाकी आहे फटाफट बघूया आणि कालचं जे आपलं सेशन घेतलेलं होतं उसके अंदर हम लोग ने कुछ बोले थे कि 20 सेंटेंसेस बनाने हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फौरन से. टाइम वेस्ट नहीं करते हम लोग. तो चलिए कौन बोलेगा सबसे पहला? हेलो. हेलो. हाँ सर, बोलूँ मैं? यस, मेरी आवाज सबको क्लियर है? यस. ओके, फैंटास्टिक. चलिए स्टार्ट. This is a water bottle. This is a girl. This is TV. This is table. This is a clothes. This is a drum. This is a glass. This is an animals. This is an oranges. This is a car. वेट. दिस इज एन ऑरेंजेस नाही आहे. Okay. सिर्फ ऑरेंज आएगा. ठीक आहे, क्योंकि जर आपण एन जर वापरला, एन म्हणजे जर Okay. अर्थ आहे एक. ठीक आहे, तर तिकडे एस हटून निकाल. Okay. 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 ओके. That's a बोलू का? येस, बोला. That is a cars. That is an aeroplanes. That is a computers. That is a trees. That is an umbrellas. That is a house. That is a dog. That is a temple. That is a row house. That is a shop. That is a mountain. That is a Brightway Personal Development Training Center. ओके, फंटास्टिक. त्याच्यामध्ये थोडासा एक करेक्शन्स आहेत, बरोबर ना? Okay. Okay. त्यावेळी तुम्ही एस लावला तर म्हणजे प्लुरल नाउन मध्ये Okay. Okay. त्याच्या अगोदर आर नाही आहे, तिथं इजच्या नंतर एस एस नाही येणार. ठीक आहे. Okay. मग That जे is- कम्प्युटरच्या that जागी is- ओनली कम्प्युटर आहे ना. हा, आणि जर तुम्ही Okay. आरचा वापर जर केलात ना तो ओके आहे. ठीक आहे. Okay. Okay. म्हणजे प्लुरल नाउन साठी आपण एस किंवा एस लावायचा आहे. आणि Okay. तिथं वापरणार काय आपण जे हेल्पिंग वर्ब आहे ते काय वापरणार आपण? आर. आणि सिंगल साठी आपण इज वापरणार. ठीक आहे. Is वापरणार. Okay. करेक्शन करून घ्या. ओके. Okay. These बोलू का? आधीच बोला. These are monkeys. These are bottles. These are girls. These are TV. These are malls. These are drums. These are bags. These are ships. These are cats. These are plants. These are medicals. फंटास्टिक. Okay. चलिए. Those those- Okay. Those are fruits. Those are computers. Those are training centers. Those are
cupboards, those are grounds, those are trains, those are bikes, those are aeroplanes, those are schools. फंटास्टिक, मोर पावर टू यू, फंटास्टिक। प्रतिभा, काफी अच्छे बनाए हुए सेंटेंस को। माइक म्यूट कर Okay. लीजिए। हाँ, बाकी के लोग का माइक म्यूट कर लीजिए। चलिए, फंटास्टिक। सब लोग हम लोग प्रतिभा के लिए हम लोग एक चैट बॉक्स में लिखेंगे एमपीटी, एमपीटी प्रतिभा के लिए। एमपीटी मतलब मोर पावर टू यू। चलो, चैट बॉक्स भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक एक चीज सीखेंगे हम लोग। चैट बॉक्स में जाइए और एमपीटी टाइप कर लीजिए। चलिए, देखो सुभाष सर का है एमपीटी। देखिए, जल्दी Thank जल्दी you, एक एक sir. नई नई चीज सीखेंगे। यस यस, ऑलवेज वेलकम। चलिए, टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में एमपीटी, मोर पावर टू यू। एमपीटी प्रतिभा के लिए हम लोग डालेंगे, टाइप करेंगे एमपीटी प्रतिभा। यस 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 यस, सर ऍक्च्युली एक क्वेश्चन आहे. बोला। जे मी हे सेंटेन्स बोलली ना, दॅट इज अ ब्राईट वे पर्सनल डेव्हलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर, हे राईट आहे का? हाँ, वो है ना, वो ब्राइट वे पर्सनल डेव्हलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर आहे वो। म्हणजे ओके. तुम्ही दर्शवत आहात, तिकडे आहे ती, हा, म्हणजे दाखवत आहे. दाखवत आहे, इशारा कर रहे ओके. तुम वहां पर वो। और दिस भी बोल सकते हैं, दिस इज हा, नजदीक दिस मध्ये पण होणार. तेच मला कन्फ्युजन होतं म्हणून विचारलं. थँक्यू. फक्त दोज आणि दीज मध्ये नाही येणार, कारण की एकच हा आहे। हा, दोस आणि दिस मध्ये नाही येणार. फंटास्टिक फंटास्टिक। Thank you. नेक्स्ट 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 कोण बोलते? लवकर लवकर हँड रस करा, लगेच आपण जी सेशन सर। चालू करू। आज आपण नवीन डेमो घेणार आहोत। यस, जी सर। हाँ बेटा, चलो बोलिए। चलिए बेटे, जी सुभाष बोलूं? सर भी आ गए, पालो सर भी आ गए हैं, और हमारे सबके प्रिय नेता भी आ गए हैं हमारे, संजय साहब भी आ गए हैं। चलिए, बोलिए बोलिए, स्टार्ट करिए। जी सर, बोलूं? हाँ हाँ, बोलिए। तो नहीं, वो छोटा बच्चा कुछ बोल रहा है, उसको बोलने दीजिए। ओके, नो प्रॉब्लम। जी छोटू, बोलो, चलो, वो हमारे प्रिंस है। यस, बोलो। यस यस, बोलो, चलो। Sir, this का example. हाँ, चला। This is a pillow. This is a stand. This is remote. This is racket. This is cover. This is a charger. This is a water bottle. This is a trophy. This is a shirt. This is a bed. फंटास्टिक फंटास्टिक। चला, दॅटचा बोला लवकर, बघू द्या। That is a map. That is a door. That is watch. That is pillow. That is an apple. That is a fan. That is an umbrella. That is chair. That is table. That is goggles. फंटास्टिक, क्या बात है। चलो नेक्स्ट, दीज एंड दोज। These are chairs. These are maps. These are these chargers. हाँ, दीज बोला, दीज बोलो, प्रोनाउंसिएशन बघा, दीज। Yes. These are covers. These are watches. These are pillows. These are water bottles. These are books. These are pens. फंटास्टिक। Those दोज are books. Those are pens. Those are biscuits. Those are noodles. Those are fruits. Those are vegetables. Those are stadiums. Those are bats. Those are ball. Those are footballs. फंटास्टिक, हमारा लिटिल मास्टर चॅम्पियन होने वाला आहे। यस, मोर पावर टू Thank you, यू। sir. अच्छा, मी काय म्हणतो, आता आपण धीस आणि दॅटचा आपण शिकलं, आणि त्याच्यानंतर आपण काय शिकलं, दीज आणि दोज। थोडासा मला एक्सप्लेन कर आपल्या भाषामध्ये, ठीक आहे? धीसचा वापर कधी करणार आपण? कोणतीही वस्तू जवळ असेल, माझ्याकडे बघून बघ छोटू, माझ्याकडे बघ आणि बोल। आता बुक मध्ये नाही बघायचं, ठीक आहे? माझ्याकडे बोलायचं। कोणतीही एक वस्तू अथवा प्राणी जर आपल्या जवळ धीसचा वापर करणार, आणि जर लांब असली तर दोस्त वापर कर. एक असली तर That. ठीक आहे? त्याहून जास्ती असेल तर छोटू बोलो, दीज जर आमच्या जवळ आहे, दीज। ओके, ठीक आहे? कारण की काय माहिती, आपण जे इंग्लिश आता शिकत आहात ना, त्याचा आपल्याला अर्थ पण कळला पाहिजे, हे पण लक्षात ठेवा सगळ्यांनी, ठीक आहे? आपण बनवणार सेंटेन्स, आता तुम्हाला 48 सेंटेन्सचा मागे मी डेमो दाखवलं होतं,
तो वो भी सीखेंगे, क्योंकि हमें हिंदी में भी समझ में आना चाहिए ना। इंग्लिश में तो आने के बाद उन लोगों को फिर हिंदी में समझ में नहीं आ सकेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। चलिए ठीक है, नेक्स्ट कौन बोलते हैं? मोर पावर टू यू, हमारे छोटू के लिए हम उसका नाम प्रिंस रखेंगे, हमारा ब्राइटरी का प्रिंस है वो। चलिए दूसरी हमारी प्रिंसेस भी है यहाँ, प्रिंसेस को सुनेंगे हम लोग। ये हम लोग छोटे छोटे जो हमारे क्रीम है ना, ये मास्टर This is a toothbrush. This is what म्यूट कर लीजिए बाकी का लोग। a camera. This is an X. Yes, yes. That is a pencil. That is a TV. That is a speaker. That is a bathtub. That is a fridge. Okay. These are the बोलो। These is a boys. These are the boys. These are keys. These are sandals. These are free. Tiffin box. Tiffin box. These are Bags. bags. These are what? Those are water bottles. Those Frames. pens. Those are Hands. बस कट झालं तुमचं। हाँ ओके फंटास्टिक बेटा। क्या नाम है तेरा बेटा? सबको एक बार फिर से बोलो तुम्हारा नाम। आरती गाडगी. गाडगी, अच्छा नाम याद रखो क्योंकि मैं ना नाम भूल जाता हूँ। गाडगी नाम है। और हमारा दूसरा प्रिंस का नाम क्या है? श्रावण. श्रावण। श्रावण। चलो हमारे लिटिल मास्टर के लिए जोरदार ताली, एमपीटी सबके लिए। ओके चलिए और कौन है हमारे जो छोटे बच्चे हैं वहां पर जो सीख रहे हैं अपनी मम्मी पापा के साथ में? चलो ठीक है, नेक्स्ट कौन बोलो? नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग है ना थोड़ा सुनेंगे हम। बाकी के लोग अपना कैम ऑन कर लीजिए, बैठिए ट्रायंगली बैठिए, कोई टेंशन नहीं, सब लोग अपना अपना कैम ऑन कर लीजिए। चलिए कौन बोल रहे हैं? सर जी बोलिए। दिस इज ए बुक, दिस इज ए बैट, यस यस बोलिए। this is a cow, this is a banana, this is a hospital, this is a balloon, this is a toy, this is a store. Fantastic. That is a girl, that is a fly, that is a home, that is a car, that is a parking, that is a window, that is an earphone, that is a moon, that is a watch, that is a pig. Fantastic. Next. These are horses. Horse. These are horses. These are colors. Okay. These are mirrors. These are flyings. These are brushes. These are tables. These are doors. These are pillow. These are coins. Okay. These are toys. Okay. Fantastic. Those का. Those are boxes. Those are blankets. Those are friends. Those are bags. Those are flower pots. Those are medicines. Those are mattress. Mattress. Those are mattress. Those are towels. Okay. Those are hangers. Okay. मस्त. Fantastic. चलो नेक्स्ट। सर एक दैट में जो मोहम्मद रियान सर का दैट में एक उन्होंने लिखा है दैट इज एयर, वहां पे ए आया ना तो ए वाउल्स है ना, तो वहां पे एन आएगा आई थिंक। आपने ध्यान से सुनी, उसमें एन बोला है उसमें एन, आपने ध्यान से सुना नहीं है। सुनिए वो मैंने एन जो है ना
ओके बोला है उन्होंने। तो फिर मेरे को समझ में नहीं, सुनने को नहीं आया। देखो अभी आप लोग समझ लीजिए, कभी कभी That किसी is की an वॉइस है ना किसी को क्लियर नहीं आती है, ठीक है। that is an animal. यस यस, मैं सुन चुका था एंड करके। कभी कभी किसी का बीच में नेटवर्क है ना फ्लैटेड होता है तो उसकी वजह से पूरी आवाज नहीं आती, और कभी कभी मेरी आवाज भी आप लोग को बीच में कोई कट होती है, तो फिर से हम लोग सुन सकते हैं उसके बारे में, ठीक है। फैंटास्टिक। चलिए बाकी के लोग हमारे भीमेंद्र जी, अश्विनी, फहद, सुहास, पवार, दीपाली शिंदे एंड साइली एंड विवले, अपना अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। दैट रिक्वेस्ट टू ऑल, हम लोग अपना अपना कैमरा ऑन करेंगे। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले एक दूसरे के साथ में। चलिए आप लोग ट्रेनिंग रूम में बैठे, सब लोग ट्रेनिंग रूम में बैठे, कैमरा ऑन कर लीजिए एंड टेक योर पोजीशन। और अपने अपने धीमेंद्र साहब आपका माइक अनम्यूट का मैं करता हूँ, फिर आप ही म्यूट क्यों कर रहे हो उसको? मैं आपको म्यूट करता हूँ, आप अनम्यूट कर रहे हैं। आपके घर में बहुत शोर हो रहा है, ठीक है। ध्यान दीजिए माइक के ऊपर आपके, म्यूट ही रहने दीजिए, जब मैं आप लोगों को बोलूंगा तब आप लोग अनम्यूट करेंगे, ठीक है। फहद साहब आपका भी माइक अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, म्यूट, ओके। दीपाली शिंदे कैमरा ऑन कर लीजिए, साइली, और हमारे नेता, हमारे जो खास हमारे दो बिजनेसमैन यहाँ पर आए हुए हैं, संजय साहब से हम लोग 2 मिनट बात कर लें। संजय साहब आप गाड़ी वगैरह चला रहे तो नहीं? संजय साहब नमस्कार। सुभाष सर ने ऑन किए हैं, फिर आशा पवार एडमिट हो रही हैं, ओके ठीक है। संजय साहब, साइली भी आ गए हैं, और भीमेंद्र जी आ गए, सुभाष सर जी गए, दीपाली शिंदे, ओके, एंड कनेक्टिंग दिस ओके। चलिए सब लोग अपना अपना क्या मान करेंगे। अभी हम लोग आवाज किसका म्यूट है? अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए बाकी के लोग। दीपाली शिंदे, चलिए अभी बाकी कौन बचा हुआ है यहाँ पर? हमारा जो स्टूडेंट है, कोई 10वीं या 12वीं कोई स्टूडेंट है? हाँ, अमन, अमन देशमुख, अमन देशमुख, चलो बोलो। अमन देशमुख, यस बोलिए। किती तुम्ही सेंटेन्स बनवलं? दिस इज ए मिरर. तुमच्याकडे हेडफोन नाही आहे काय? हेडफोन आहे का नाही? तुमचा आवाज क्लिअर नाही, बाकीच्या लोकांना पण आवाज आला पाहिजे. हेडफोन आहे पण त्याचा माईक खराब आहे. असं जमून घ्या त्याला. झालं बरोबर आवाज. चला ठीक आहे, चला बोला बोला, आपण ऍडजस्ट करून घेऊ, ठीक आहे. शीतल ऍडमिट हो रही है, ओके चला. नमस्कार सर, 2 मिनिटं जरा थांबा. आमचे लाडके नेते आणि आपले लक्ष्मी फूड्सचे कर्णधार कॅप्टन अपने आए हुए, तो कॅप्टन 2 शब्द पहिले बोलेंगे. थोडासा आपल्या लोकांना सगळ्यांना बघून खूप आनंद वाटत असेल त्यांच्या लोकांना. आमचे लाडके संजय सर. संजय सर नमस्कार. अनम्यूट करायला दिलेलं आहे परमिशन, आणि तुमचं बोलणं करून घ्या. संजय सर. हेलो. हेलो, नमस्कार. नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन. गुड इवनिंग. हेलो. हा हा सर बोला, ऐकायला येते सर मला. या येत आहे. येस बाकी येस. कसं आलं कालचा आहे कसं आलं? काल मी नव्हतो. कालचा इफेक्ट बघा आज तुम्हाला दिसत आहे. सगळे आपल्या कॅमेरा समोर बसलेत आहेत. बरोबर. आणि चाललेलं आहे, कालपासून थोड़ा प्रैक्टिस चालू झालेली आहे छोटी छोटी. सर ऐसा कुछ बोलिए ना जो सभी के समझ में आए. सर समझ में नहीं आ रहा है तो प्योर हिंदी बोलिए, नहीं तो फिर म्यूट कीजिए सभी को. कंफ्यूजन हो रहा है ना इससे. ठीक है, टेंशन मत लीजिए. सेशन अच्छा रहा आज का, देख रहे हो तो सबको अच्छा लग रहा है, मतलब कुछ स्टार्ट हुए लोग बोलने में. हाँ अभी तो क्या वो छोटे छोटे चीज है, वो थोड़ा सा बोलते ना एक एक चावल और ये सब जमा कर रहे हैं हम लोग. फिर हम इसको पकाएंगे. राइट. फैंटास्टिक सर, आप टाइम पे आ गए. चलिए अभी हम लोग सर स्टार्ट कर लेते हैं. कल का जो सेशन हम लोगों ने एंड किए थे, दिस दैट एंड दोस, मुझे जवळ नजदीक की चीज और दूर की चीज अगर एक रहेंगी तो उसको कैसा यूज करते हैं, और एक से ज्यादा रहेंगी तो उसको कैसा बोला जाता है. तो वो हम लोग ने सेशंस हम लोग ने लिए थे कल, और उसके रिकॉर्डिंग भी शायद आप लोगों ने सब लोगों ने देखे होंगे, और वो हम लोग ने रात में ही अपलोड कर दिए थे. ठीक है, तो आज हम लोग सीखने वाले द बैकबोन ऑफ इंग्लिश. इंग्लिश का बैकबोन क्या है? वो है हमारे टेंसेस.
उस टेंसेस के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो नोटबुक्स वगैरह आप लोगों के रेडी हैं तो आप एक बार नोटबुक्स को आप लोग अपनी जगह पर लाइए और सारे लोग टेंसेस के बारे में हम लोग लिखेंगे। ठीक है, आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन, राइट द टेंसेस। अभी भी कोई आ रहा है? ठीक है, चलिए चलो, राइट डाउन टेंसेस, द टॉप हेडिंग टेंसेस। टॉप हेडिंग हम लोग लेंगे टेंसेस। सबसे पहला जो टेंस है वो है प्रेजेंट टेंस, काल म्हणतात त्याला, उसको हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। अपने अपने माइक्स म्यूट कर लीजिए। वर्तमान काल, उर्दू में उसको बोलते हैं ज़माने हाल। अब इसके अंदर क्या क्या होता है ध्यान दीजिए। म्यूट कर लीजिए माइक, जिसका भी माइक ऑन है वो ध्यान दीजिए अपने माइक के ऊपर, बाकी के लोग भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। समीक्षा, ठीक ना। ये प्रेजेंट टेंस जो होता है वो वर्तमान काल कहलाता है। मजे ये कि जो अभी हाल चल रहा है, वक्त जो चल रहा है, उसको प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। प्रेजेंट टेंस के अंदर हम लोग क्या क्या हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो देख लीजिए। हम लोग इसके अंदर डू और डज का प्रयोग कैसा करते हैं वो सीखेंगे। डू डज, फिर बाद में हम लोग सीखेंगे इज एम आर। इज एम आर का कैसा प्रयोग किया जाता है, हैड का कैसा प्रयोग किया जाता है, हैज बीन का कैसा प्रयोग किया जाता है, हैव बीन का कैसा प्रयोग किया जाता है, हैज हैव का कैसा प्रयोग किया जाता है, ये हम लोग इसमें सीखने वाले हैं प्रेजेंट में। उसको वर्तमान काल कहते हैं, जमाने हाल बोलते हैं उसको उर्दू में, और अपने हिंदी में होते हैं वर्तमान काल। त्याच्यानंतर नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे पास्ट टेंस। पास्ट टेंस को बोलते हैं भूतकाल, वक्त जो गुजर गया। कल जो हम लोग ने सीखे वो वक्त गुजर गया, इसके पहले अभी हम लोग ने आपने जो भी सेंटेंसेस बोले वो हुआ है पास्ट, बराबर, भूतकाल। उर्दू में उसको बोलते हैं जमाने माजी, पास्ट टेंस। अब पास्ट टेंस के अंदर कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, ये जो आपको को राउंड में दिखाया इसके पहले भी, वो है हेल्पिंग वर्ब्स, इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। अभी यही हम लोगों को प्रॉब्लम्स आती है कि डिड कहाँ लगाना है, हैड कहाँ लगाना है, हैड बीन कहाँ लगाना है, वाज वेयर कहाँ लगाना है। तो ये हम सीखेंगे डिड, हैड बीन, वाज वेयर। इसके अंदर पास्ट टेंस के अंदर ये हेल्पिंग वर्ब्स इसको बोलेंगे, ये होते हैं। और फ्यूचर टेंस हम लोग सीखेंगे उसके बाद में। फ्यूचर टेंस को बोलते हैं भविष्य काल, जमाने मुस्तकबिल, जमाने मुस्तकबिल बोलते हैं फ्यूचर टेंस को। तो तीन मेन है टेंसेस। टेंसेस की फैमिली के तीन जो कर्णधार है, तीन मेन लोग है, वो है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं ध्यान दीजिए, हेल्पिंग वर्ब डू, डज, इज, एम आर, हैज, हैव, हैज बीन एंड हैव बीन, ये इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब होते हैं। पास्ट टेंस के अंदर ये जो पास्ट है उसके अंदर होता है डिड का प्रयोग किया जाता है, वाज वेयर का प्रयोग किया जाता है, और हैड का प्रयोग किया जाता है, हैड बीन का प्रयोग किया जाता है। ये पास्ट में मुझे जो काल गेलेला है, जो जमाना गुजर चुका है, गुजरा हुआ कल बोलेंगे इसको पास्ट टेंस। और फ्यूचर टेंस के अंदर भविष्य काल की बात होती है, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, मैं खिलाऊंगा, मैं बिजनेसमैन बनूंगा, ये सब फ्यूचर की बातें होती है। मैं मेरे बच्चों को कलेक्टर बनाऊंगा, तो ये भविष्य काल की बात है, तो उसको जमाने मुस्तकबिल बोलते हैं। इसके अंदर यूज होता है शल और विल, और फिर शल बी का यूज होता है, शल हैव का इस्तेमाल होता है, विल हैव का इस्तेमाल होता है, शल हैव बीन का इस्तेमाल होता है, विल हैव बीन का इस्तेमाल होता है। ये जो मेन चीज है ना, ये हमको बड़ा कंफ्यूज कर देती है, और ये कंफ्यूजन की वजह से हम लोग इंग्लिश तो काफी वोकैबुलरीज और काफी वर्ड्स हमको पता है, लेकिन कौन सा किस सिस्टम में आएगा वो नहीं पता। तो ये हम लोग अभी जो तीन टेंसेस है वो दिमाग में रखना है। सबसे पहला टेंस कौन सा रहेगा, प्रेजेंट टेंस, सेकंड रहेगा पास्ट, एंड थर्ड रहेगा फ्यूचर। इसके अंदर होता क्या है,
कभी कभी लोग है ना पहले पास्ट टेंस बोल देते हैं तो कोई फ्यूचर बोल देता है, लेकिन पहला हमारा हमेशा प्रेजेंट रहेगा। वो तो ऐसा हो जाता है कि खाना परोसा हुआ है, एक इसमें दाल रखा है, एक इसमें भाजी रखी ली है और एक इसमें चावल रखा हुआ है। तो पहले हम लोग भाजी नहीं खाएंगे और दाल नहीं पियेंगे, तो पहला दाल पियेंगे क्या? नहीं, हम लोग सीक्वेंस से लाइन से ले लेंगे, तो पहला हमेशा प्रेजेंट टेंस रहता है। अब ये जो टेंसेस है 3, हर एक के 4 पार्ट्स होते हैं, उसके अंदर 4 पार्ट्स हम लोग अभी लिख के लेने वाले हैं, और ये 4 पार्ट्स ऐसे मिला के टोटल होते हैं 12 टेंसेस। तो 12 टेंसेस अभी हम लिखेंगे और आपको एक 5 मिनट का मैं डेमो आइडिया दे दूंगा। आप 5 मिनट में सब लोग 5 मिनट में सब लोग वो 12 के 12 टेंसेस आपके दिमाग में परमानेंटली फिट हो जाए, क्योंकि कुछ टेक्निक होती है, उस टेक्निक को हम लोग लेके हम लोग सिखाते हैं कि छोटे रहो या बड़े रहो, सबके लिए वही टेक्निक्स है, और वो टेक्निक हम लोग अभी सीखने वाले हैं। तो आप वापस से एक पेज ओपन कर लीजिए, जो आपने लिखा है उसके नीचे लिखिए, पहला वाला जो हम लोग ने लिखे थे वो हमको लिखना है फिर से, प्रेजेंट आर 4 टाइप्स। चलो नेक्स्ट, क्योंकि ये बहुत बेस है। प्रेजेंट टेंस आर 4 टाइप्स, चलिए लिख लीजिए, प्रेजेंट टेंस आर 4 टाइप्स। सबसे पहला रहेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट डाउन, सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं, चाहे तो बाजू में लिख सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वो पुराना नाम था, इंडेफिनिट टेंस से लोग जानते हैं इसको, नया जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी इसे बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, थर्ड वन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एंड फोर्थ वन दोनों मिला के ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये प्रेजेंट टेंस के 4 बेटे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब हम लोग को एक ऑफर मिलने वाला है सबको, सब लोग ऑफर खरीदने के लिए जाते हैं कि नहीं? जैसे कुछ ऑफर रहता है, ये आप लोग एक बार लिख लीजिए, तो मुझे कोई आवाज दीजिए कि यस कंप्लीट हुआ है कर, तो मैं स्क्रीन को स्टॉप कर दूंगा और ये चीज को पहले समझाऊंगा आपको। अब एक ऑफर मैं देने वाला हूं, 4 जो भी खरीदेगा उसको 8 फ्री है। जैसा ही फ्री हम लोगों को मालूम पड़ता है कि 4 खरीदेंगे तो 8 फ्री है, तो हम लोग क्या कर देंगे, फटाफट खरीदना शुरू कर देते हैं, क्योंकि 8 फ्री मिल रहा है। तो आप लोगों को खाली 4 दिमाग में रखना है, 8 ऑटोमेटिकली आ जाएगी। मैं बटन दबा दूंगा और आप लोगों को 8 आ जाएगी। दैट इज अ टेक्निक। तो मैं स्क्रीन को स्टॉप कर दूं और हम लोग पहले समझ लेंगे, उसके बाद में आगे क्या लिखेंगे। तो प्रेजेंट टेंस आर 4 टाइप, ध्यान में रखिए। जरा लिखना सबका हो गया तो मुझे एक बार यस चैट बॉक्स में डाल दीजिए यस। चलिए फैंटास्टिक, स्टॉप सर। नाउ तो टेंसेस की फैमिली में 3 मेन टेंस है। एक है प्रेजेंट, ये प्रेजेंट टेंस को सीखने के लिए बहुत टाइम लगता है, बाकी का सारा जो है ना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि वो बेस है। बेस बनाने के लिए काफी वक्त लगता है, और हम लोग जो सीख रहे हैं ना बहुत ही बेसिक से सीख रहे हैं, मतलब कि आप लोग सीख के अपने घर में भी और काफी लोगों को भी सिखा सकते हैं। तो बेस, काफी लोगों का प्रॉब्लम ये था कि बेस नहीं समझ में आता है, इसकी वजह से वो आगे जो है ना प्रैक्टिस नहीं कर पाते। तो हम पूरा बेसिक से समझ रहे हैं, ठीक है। तो पहला है प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस के 4 बेटे हैं। अब 4 हम लोग को बेटे को किस तरह से याद करना है, एक आपको टेक्निक दे रहा हूं मैं, ठीक है। पहला जो बेटा है ना, जैसे हम लोग देखते हैं कि एक बेटा बहुत सिंपल रहता है, सिंपल, वो है ना सिंपल है, सिंपल। हम लोग ये वोकैबुलरी यूज करते हैं बार बार, सिंपल, याद आया आपको? अरे ये तो सिंपल है, ये तो सिंपल है, वो तो सिंपल है। तो सिंपल एक टेंस का नाम है। सिंपल हम लोग बार बार बोलते हैं, लेकिन वो एक टेंस का नाम है। तो आप लोगों को दिमाग में एक रखना है कि आपके आसपास में
या आपके फैमिली में या आपके दोस्त में सिंपल कौन रहता है, बहुत सिंपल कौन रहता है, उसका नाम दिमाग में रख लीजिए आप। तो सिंपल क्या होगा, एक टेंस का नाम है, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्लियर है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। एक कोई भी शख्स का नाम दिमाग में रख लीजिए, या कोई लड़का है जो आपके ऑफिस में काम करता है या आपके कहीं भी जो बहुत सिंपल रहता है, वो उसका नाम दिमाग में रखिए, सिंपल है, वो सिंपल है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल एक टेंस का नाम, क्लियर। अब दूसरा क्या मालूम है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस मतलब एक जो लड़का है या कोई रहता है बार बार मोबाइल पर लगा रहता है, बस चालू है उसका, लगे रहो, कंटिन्यू मतलब क्या है, करते रहो। एक हम लोग ऐसे ही इनडायरेक्टली समझने के लिए बोल रहे हैं, एक जो लड़का है वो कंटिन्यू मोबाइल पर रहता है, उसको दिमाग में रख लीजिए। कंटिन्यू अपन बार बार बोलते हैं, यस और नो, सब लोग बोलते हैं कंटिन्यू कंटिन्यू कर, कंटिन्यू कर, हाँ लगे रहे कंटिन्यू कर, कंटिन्यू कर। तो कंटिन्यू का साथ में खाली स लग गया, माइक किसका अनम्यूट है जरा देख लीजिए। तो सिर्फ कंटिन्यूअस हो गया, क्या हो गया, कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस एक टेंस का नाम। सेकंड क्या हो गया, एक तो सिंपल है और एक तो दिन भर कंटिन्यू काम करते रहता है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो। एक तो काम करते रहता है, या तो मोबाइल पे लगा रहता है, या तो फोन पे बातें करते रहता है दिन भर, वो कंटिन्यू करते रहता है, तो कंटिन्यूअस। और तीसरा जो है ना बेटा, वो है परफेक्ट। क्या है, आपण असं म्हणतो ना, आपण डीसी वगैरह घातला, कपड़ा छान घातला का आपण विचारता ना, हम लोग पूछते हैं ना हस्बैंड को, वाइफ को कि कैसा लग रहा हूं मैं, तो वाइफ ऐसे बोलती है परफेक्ट। क्या बोलती है, परफेक्ट। तो परफेक्ट हम लोग बार बार यूज करते हैं कि नहीं, हमारे दिन में कितने बार यूज करते हैं परफेक्ट। तो परफेक्ट एक टेंस का नाम, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तीसरा बेटा जो है वो परफेक्ट है। अब चौथा जो है ना, चौथा के अंदर दोनों गुण है, ये दोनों मिला के चौथा बन रहा है। चौथा क्या बन रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। चौथा जो है लड़का, वो परफेक्ट भी है और कंटिन्यू ही काम करते रहता है। अब इसको समझ लीजिए, अलग अलग आप लोग को नाम उसके अंदर दिमाग में डालना है, और वो नाम दिमाग में आपके रखना है कि आप किसके बारे में क्या सोच रहे हो। कौन कंटिन्यू मोबाइल के ऊपर रहता है बार बार, और कौन एकदम सिंपल रहता है, लोला गोला एकदम, बराबर ना, और कौन परफेक्ट है आपके फैमिली में, या कोई भी और भी मेंबर्स बाहर रहते हैं या ऑफिस के अंदर, या कोई इंग्लिश बोल रहा है आपके सामने, वो आप उसको दिमाग में रखिए। तो सबसे पहला जो टेंस है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अभी मैं आपको एक्सरसाइज बताता हूँ, आंखें बंद करना है सब लोगों ने, और मेडिटेशन करना है हमको। मेडिटेशन मतलब कि सोचना है उसके बारे में। क्लोज योर आईज, सब लोग आंखें बंद करेंगे, और मैं जैसा वो सब बोल रहा हूँ, धीरे 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 आप समझ लीजिए। सबसे पहला जो लड़का है वो बहुत सिंपल है, सिंपल, सिंपल एक टेंस का नाम, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा जो है वो कंटिन्यू मोबाइल पर लगा रहता है, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। तो दूसरा जो टेंस है उसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। दिन भर कंटिन्यू मोबाइल पे लगा रहता है। और थर्ड जो है वो परफेक्ट है, अपने काम के अंदर, अपने ड्रेसिंग के अंदर, इंग्लिश के अंदर परफेक्ट, एक नंबर परफेक्ट है। तो परफेक्ट एक टेंस का नाम है, आके सब लोग बंद कीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक टेंस का नाम है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब चौथा जो है वो परफेक्ट भी है और कंटिन्यू काम भी करता है। वो किसी का नाम आप दिमाग में रख लीजिए, आपके फैमिली में, आपके बाहर के ऑफिस के लाइफ में, या बाहर के लाइफ, वो किसी का नाम दिमाग में रख लीजिए। तो चौथा जो टेंस है वो दोनों मिला के है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
ऐसे मिला के पूरे 4 टेंसेस है और ये 4 टेंसेस हमको पूरे लाइफ के लिए काम आने वाले। तो पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस है, एक लड़का से, दूसरा जो है वो है कंटिन्यूस, तीसरा जो है वो परफेक्ट है और चौथा दोनों मिला। मी नाही येत तिकडे 5 बसा तुम्ही तुमचं ठीक है जरा झोपते का म्हणजे अहो जरा झोप लागते तर झोप येते चलिए नाउ ओपन योर आईज। फैंटास्टिक। चलिए हम लोग अभी ट्राई करेंगे, चारों के चारों एक साथ में बोलेंगे आराम से, ठीक है। तो सबसे पहले कौन बोलेगा, हैंड रेस कर लीजिए। हेलो। हाँ जी बोलिए। मतलब ये फर्स्ट 4 बोलने का है ना? हाँ फर्स्ट 4 बोलिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस and last one present perfect continuous tense. फैंटास्टिक, ऑसम। Thank you. बुक नहीं ना देख रहे, खोल के देखने नहीं रहेगा। नहीं 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 हाँ चलो अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट कौन बोलेगा, जल्दी जल्दी चलिए, अभी आप लोग को आगे बहुत बाकी है। 5 मिनट में 8 के 8 बोलना है। यस बेटा बोलो चलो। Sir, first simple present tense, second simple continuous tense, third present continuous tense, third present perfect tense, fourth present continuous perfect tense, present perfect continuous tense. फैंटास्टिक फैंटास्टिक ग्रेट। चलिए अभी हमारी ये कौन बोलेगा अभी नेक्स्ट नेक्स्ट, और कौन हमारे इसमें है, कहाँ है अमन, अमन अमन कहाँ हो? चलो अमन, ये टेक्निक अगर आपने आंख बंद किए होंगे तो आपको फौरन से आ जाएगा, क्योंकि जो मेंटर जो ट्रेनर बोलता है तो उसके हिसाब से हम लोग फॉलो अगर करेंगे तो 100% आ जाएगा। चलो बोलो अमन। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मस्त, फैंटास्टिक, ग्रेट। चलिए और कौन बोलना चाहेगा तो आगे की मैं टेक्निक लेता हूँ। हमारे साथ में और भी है लोग, रंजना जी, एक तो रंजना वहां की है और एक रंजना मुंबई की है। चलो वो रंजना को मैंने बुलाने वाला हूँ, मैं एक बार आपके सामने उसको इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ जो वेस्ट बंगाल की है। ओके चलिए सर। रंजना जी बोलिए, चलिए बोलिए। सर सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फैंटास्टिक, टेक्निक काम कर रही है जो बता रहा हूँ मैं वो आइडिया से। यस सर। अब ये जो है ना टेंस 4 जो है ना वो हमेशा दिमाग में रहेंगे आप। ओके सर। कभी भूलेंगे नहीं, पक्का गारंटी है। ओके सर। ठीक है। हमारे साथ में कहाँ गए वो, सुषमा बराई फ्रॉम नागपुर ज्वाइन हुए। वो मेटाब्लास्ट में काम करते हैं, लेकिन मैं उनको आज बोला कि हमारे सारे महाराष्ट्र फैमिली आई हुई है तो उनको भी मैंने इनवाइट किया। तो सुषमा फ्रॉम नागपुर, ठीक है, आए यहाँ पर है। चलिए फैंटास्टिक। अभी हम लोग आगे की जो है, आगे की जो 8 है, जैसा मैंने बोला था ना 4 खरीदो 8 फ्री है। आगे की जो 8 है ना वो कैसा करने का है, अभी आप लोग नेक्स्ट पेज पे हम लोग लिखेंगे या उसी पेज पे आप लिखेंगे कि पास्ट टेंस आर 4 टाइप्स, पास्ट टेंस आर 4 टाइप्स। चलिए लिख लीजिए, पास्ट टेंस आर 4 टाइप्स। पहला वाला क्या रहेगा, जहां पर हम लोग ने ये लिखे थे प्रेजेंट, वहां से हटके आप लोग क्या लिखेंगे, पास्ट लिखेंगे। वहां पर क्या लिखेंगे, पास्ट। सिर्फ प्रेजेंट हटेगा और सारे यहाँ पर पास्ट लिखा जाएगा। पास्ट पहले होगा सिंपल पास्ट टेंस, दूसरा होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस और फोर्थ हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
ठीक, चलिए मैं स्क्रीन को शेयर करता हूँ चाहे तो आपको एक बार। पहले हम लोग 8 के 8 लिख लेते हैं और फिर हम चलिए फैंटास्टिक। देखिए स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ ताकि स्पेलिंग आपकी किसी की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। हम लोग स्पेलिंग के साथ भी ध्यान दे देंगे। ये हमारा था प्रेजेंट के 4 टाइप और ये हमारे अभी फ्यूचर नहीं है, वो पास्ट है, गलती से फ्यूचर लिखा हुआ है। देखो सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल परफेक्ट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस। यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, बराबर, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब हम लोग फ्यूचर के लिखेंगे बाकी के, ठीक है। फ्यूचर के लिखिए, फ्यूचर टेंस आर 4 टाइप्स। फ्यूचर टेंस आर 4 टाइप्स। सबसे पहला रहेगा सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फोर्थ वन रहेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। मतलब जहां पर हम लोग ने प्रेजेंट यूज किए थे ऊपर, उसकी जगह पर हम लोग क्या लगा रहे अभी पास्ट, और फिर बाद में क्या लगा रहे फ्यूचर लगा रहे। दैट्स ऑल, और कोई बड़ा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अभी हम लोग इसको 12 के 12 को किस तरह से प्रेजेंट करेंगे देखते हैं। चलिए टेक्निक को खाली दिमाग में रखिए, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। अभी वही टेक्निक से आप अपने आंखें बंद करके वो प्रेजेंट की जगह पास्ट को रखिए और पास्ट की जगह फ्यूचर को रखिए। स्क्रीन को हम लोग शेयर करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। चलिए हो गया, डेमो लेते हैं हम लोग। वीवो हो गया, फंटास्टिक। चलिए ट्राई करेंगे, पहले पहले देख के पढ़ेंगे, ठीक है। कोई भी एक देख के पढ़िए। उज्ज्वला या तो समीक्षा या तो दीपाली, ये नए कुछ लोग बोलेंगे हमारे।
अमन देशमुख तो बोल चुके हैं, और किसने नहीं बोला है? मोहम्मद जैद बोलिए। आपने जो लिखा वो बोलिए, देख के बोलिए पहला। ओके सर। जी बोलिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, पास्ट प्रेजेंट टेंस, पास्ट कंटिन्यू टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। थैंक यू सर, इतना ही लिखा है। उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस लिख लीजिए उसको। सिंपल हाँ, उसके पहले आप लिखिए पास्ट टेंस आर 4 टाइप्स, जैसा हम लोग ने पहले लिखे थे ना, प्रेजेंट टेंस आर 4 टाइप्स, वैसा ही वहां पर लिखिए पास्ट टेंस आर 4 टाइप्स। मेरे ख्याल से स्क्रीन को दिखाना जरूरी है। पालो सर के दिमाग में बैठ गए होंगे पूरे। चलो पालो सर, सब बढ़िया, चलो मस्त, सबके सब बोल सकते। अब 8 के 12 के 12 हम लोग सुनेंगे 12 पालो सर से। 12 से 12 बोलो। सिंपल सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। हो गया। अभी उसके जगह खाली पास्ट लगाना है। सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यू टेंस, पास्ट पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। अभी फ्यूचर लगाना है, खाली फ्यूचर लगाना है ना। तो सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यू टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। फैंटास्टिक, मतलब 4 खरीदे 8 फ्री हो गए। 8 फ्री हो गए, खाली उसको इधर उधर करना है ना। यही टेक्निक हम लोग आगे भी सब सीखने वाले हैं, क्योंकि क्या होता है, रट्टा मार के कुछ होने वाला नहीं है। हम लोग रट्टा नहीं मारने का। रात को 12 बजे भी कोई भी आपको उठ के बोलेंगे वो टेंसेस कितने होते, बोले 12 होते हैं। बोले 3 के 12 कैसे हो गए, बोले मोदी ने 12 बना दी, बोले 3 थे अभी 12 हो गए। ठीक है, तो 12 टेंसेस होते हैं, 3 मेन है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, दैट्स ऑल। सारे के सारे 12 हो जाते हैं। चलो अभी 12 के 12 कौन बोलेगा? सुभाष सर तो बोलेंगे, यहाँ पर और कौन है? छोटू छोटू करेगा? श्रावण ट्राई करता है? चलो क्लोज योर आईज एंड टेल मी। Yes. Present, simple present tense. हाँ, नोटबुक बंद है ना? हाँ। Simple present tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense, past simple past tense, past continuous tense, past perfect tense, past perfect continuous tense. Fantastic. Future simple future tense, future continuous tense, future perfect continuous perfect tense, future perfect continuous tense. Fantastic. Sir. Very good. Thank you sir. देखो एक छोटा सा एक डेमो हम लोग ने आप लोगों को बता दिया कि ये 12 के 12 परमानेंट मेमोरी में कैसे जाएंगे। अब इसको पाठ करने की जरूरत नहीं बार बार, वो टेक्निक से अब ये बच्चे को कभी भी पूछो ये हमेशा याद रखेगा। ये एग्जाम के लिए नहीं है, आपकी पूरी लाइफ के लिए। तो टेक्निक्स कुछ ऐसी रहती है, कुछ टेक्निक की वजह से हम लोगों को काफी चीज आ जाती है, और आने के लिए हम लोगों को उस सेशन के अंदर बैठना पड़ता है, उस टेक्निक के लिए बैठना पड़ता है, और उस टेक्निक को इस्तेमाल करने का होता है, यूज करने का होता है, तो हम लोग को आ जाता है। एक आप लोगों को मैंने बोला कि 5 से 6 मिनट के अंदर 12 के 12 टेंसेस में याद करा था। तो आपको ये डेमो मैंने करके दिखाया, और 12 के 12 टेंसेस हम लोग को याद हो गए, और ये कभी भी नहीं भूलना है। अभी मैं पूछूंगा और किसी को, डॉक्टर साहब वो टेक्निक आंखें अगर बंद करेंगे, देखो अगर आंखें बंद किए होंगे तो आएगा, अगर आंखें बंद करके जो मैंने टेक्निक बताया था वो टेक्निक से नहीं किए गए तो अभी बोलेंगे, बाद में भूल जाएंगे। चलिए बोलिए, म्यूट है आपका।
सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, वो फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट क्या बोला, मुझे ध्यान नहीं रहा इस चीज का। आप फ्यूचर बोल दिए थे लास्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। यस यस, चलिए अब इसका पास्ट है ना, इसका पास्ट है सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, दोनों एक मिला के लास्ट में, लास्ट वाला जो है दोनों मिला के। ठीक है, चलो अभी फ्यूचर को देखते हैं। मस्त, अच्छा है। फ्यूचर सिंपल टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, हाँ सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, अब परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पहले हमारा आएगा सिंपल फ्यूचर टेंस, फिर बाद में आएगा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, कंटिन्यू कर कंटिन्यू, हाँ, फिर बाद में परफेक्ट, फिर बाद में दोनों मिला के परफेक्ट, मस्त परफेक्ट। 12 जगह पे बैठेंगे। चलो अच्छा, अभी और कौन बोलेगा? चलिए भीमेंद्र जी पुराने ग्रुप वालों को फंसाओ ना फिर। ये मेरे पे वो करे तो मैं भीमेंद्र जी को कहूंगा, फिर भीमेंद्र जी को बुलाओ। गाड़ी फंस गई भाई। चलिए भीमेंद्र साहब बोलिए। हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। क्या बात है, जुग जुग जियो, आगे बढ़ो। सिंपल पास्ट टेंस, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस एंड चौथा परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट नहीं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। चलो हो गए 8। चलिए अभी फ्यूचर की बारी आ गई, अब सबका फ्यूचर आपके हाथ में। फ्यूचर पहले सिंपल, हाँ भूल जाओ सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, ओके, सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस एंड पास्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सगळी खिचडी भरून टाकलेत का काय तुम्ही? पास्टला पण घेतला, फ्युचरला पण घेतला, प्रेझेंटला पण घेतला. तर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, हाँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये थोड़ा 4 में सीख लो। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। नहीं देखने का नहीं होता, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पहले आपके 4 जो दिमाग में बैठे ना, वैसे ही उसको विजुअलाइज कर लीजिए, आप आ जाएंगे 12 के 12 दिमाग। चलो सुभाष सर कुछ बोलना चाह रहे हैं? यस सुभाष सर बोलिए। बाकी के लोग अपना माइक पे ध्यान रखिए, म्यूट कर लीजिए। सर मेरे को एक मौका तो आपको देना पड़ेगा एज अ मेमोरी ट्रेनर। तो मैं अभी बहुत लोग हैं शायद वो नहीं बोल पा रहे हैं, बट मैं बोल रहा हूँ ईमानदारी से बोलो, अगर नहीं आया है तो फिर से सर बताएंगे। और जब उन्होंने मुझे पहले बताया था तो मेरे पास एक टेक्निक है जिसको मैंने डेवलप किया और मैं उस तरीके से मैंने इसको याद किया। तो अगर आप लोग चाहे तो मैं 1 मिनट में वो शेयर कर सकता हूँ। जैसे टेंस आपका आवाज नहीं आ रहा है सुभाष सर का, थोड़ा नेट गया, अभी नेट गया, हाँ अभी आ गया।
जी बोलिए सर। हाँ, एक मिनट, इंटरनेट का प्रॉब्लम है। आया अभी? आया आया। हाँ, तो मैंने इसको ऐसा याद किया, जैसे सर ने आंख बंद करके मेडिटेट कराया, वो बहुत अच्छा तरीका है ताकि आपको ये हो जाए। लेकिन अगर आप इन सबकी बायोग्राफी जान ले, जैसे बायोग्राफी जानने के लिए ये टेंस है ना, टेंस ये फादर है सबका, हेड में रखो उसको, टेंस को मतलब आप समझ लो कि वो दादाजी है। इसके 3 बेटे हैं। 3 बेटे कौन से हैं? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये 3 बेटे हैं किसके? टेंस के। टेंस के 3 बेटे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब ये तीनों के 4-4 बेटे हैं जिनका नाम सेम है। तो पहले वाला, अगर हम प्रेजेंट के, पहला जो प्रेजेंट वाला है ना, उसके 4 बच्चों का नाम याद करते हैं। तो पहला जो बच्चा है वो सिंपल। तो सिंपल वाला कभी भी अपने बाप का नाम है ना पहले नहीं लगाता है, मतलब सॉरी, सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि सिंपल जो लड़का है वो अपने बाप का नाम अपने नाम के बाद लगाता है। जैसे उसका नाम सिंपल हो गया, प्रेजेंट उसके बाप का नाम हो गया, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब जो दूसरा लड़का है प्रेजेंट का, जिसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो अभी देखो प्रेजेंट पहले आ गया और कंटिन्यूअस बाद में आ रहा, मतलब ये कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस अपने फादर का नाम पहले लगाते। ठीक है, तो सबसे पहला नाम सिंपल वाले ने रखा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसका दूसरा जो है वो कंटिन्यूअस। आप आंख बंद करके ये विजुलाइज करो कि कंटिन्यूअस वाला आदमी ना हर काम कंटिन्यूअस कर रहा है। अगर वो खा रहा है तो कंटिन्यूअस ही खा रहा है, खा रहा है तो खाते ही जा रहा है, खाते ही जा रहा है, कंटिन्यूअस, रुक ही नहीं रहा है। अगर वो दौड़ रहा है तो कंटिन्यूअस दौड़ रहा है, कंटिन्यूअस दौड़ रहा है, कंटिन्यूअस दौड़ रहा है, कंटिन्यूअस दौड़ रहा है, सो रहा है तो सो ही रहा है, कंटिन्यूअस सो रहा है, कंटिन्यूअस सो रहा है, मतलब उसका काम ही कंटिन्यूअस है। ये सेकंड बेटा हो गया। जो तीसरा बेटा है वो परफेक्ट। परफेक्ट में आप कोई भी एक, लाइक अमिताभ बच्चन की इमेज विजुलाइज कर सकते हो, या रतन टाटा की इमेज विजुलाइज कर सकते हो, कोई भी एक बिजनेसमैन जो बहुत परफेक्ट हो आपके नजर में। तो पहला वाला सिंपल हो गया, दूसरा वाला कंटिन्यूअस हो गया जो हरदम कंटिन्यूअस काम करता है, तीसरा जो हो गया वो परफेक्ट। और जो चौथा है इसमें दोनों के गुण है। चौथा वाला क्या है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट तो है ही है वो, लेकिन वो भी कंटिन्यूअस करता है। तो ऐसे 4 प्रेजेंट के हो गए, फिर 4 पास्ट के हो गए, और वही 4 फ्यूचर के हो गए। तो इस तरह से हम लोगों ने 12 जो टेंस है आपको वो फट से याद आ जाएगा। और अब इम्तियाज सर जो हम लोग को बताएंगे कि इन 12 टेंसेस से हम कितने शब्द बना सकते हैं, हजारों बना सकते हैं, हजारों। और इंग्लिश सीखने के लिए सिर्फ 500-600 शब्दों की जरूरत होती है। थैंक यू। थैंक यू। अभी जो हम लोग ने ये टेंसेस जो समझे, उस टेंसेस के अंदर हर टाइप के 4 रहते। मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है। अगर किसी ने लिखा नहीं होगा तो वो उसको फिर से लिख सकता है। स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं आपको। कहाँ गया भाई? इकोनॉमिक्स टाइम्स आ गए हैं। चलिए, एक बार करेक्ट कर लीजिए आप लोग, अगर आपको नहीं स्पेलिंग में कुछ गड़बड़ होंगी तो, ठीक है। चलो, तो ये थे हमारे टेंसेस। पास्ट टेंस आर 4 टाइप्स: पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर उसके बाद में फ्यूचर टेंस के 4 टाइप्स थे, ये आप लोग ने लिख लिए। अभी मैं आपको है ना शेयर करने वाला हूँ ग्रुप के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई, मी, माई, यू, यूअर, अवर, ही, मतलब आई को क्या बोलते हैं, माई को क्या बोलते हैं, मुझे को क्या बोलते हैं, मेरे को क्या बोलते हैं, मेरा को क्या बोलते हैं, तुम, तुम्हारा। अभी ये हर सेंटेंस के अंदर यूज होने वाला है, और हर सेंटेंस के अंदर ये यूज होने वाला है। इसकी वजह से ये हमको याद करना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि देखो, मैं मतलब इंग्लिश में इसको आई बोलेंगे, मुझे मी, मेरा माई, तुम यू, तुम्हारा यूअर, हमारा हमर, अवर, वो जो है वो मेल के लिए ही यूज होगा ही, और फीमेल के लिए शी यूज होगा। हम, वी, वो सब, दे, हिंदी में इसको वे बोलते वे,
और फिर उसका, उसकी, उसका, उसके। ये मेल, जब ये मेल के लिए यूज होता है हिज, ये सेंटेंस के बीच में आता है अक्सर, ठीक है। और अगर फीमेल के लिए बात हो रही है तो हर बोलेंगे उसको, हिज, हर, उसका, उसकी, उसके। तीनों की मीनिंग सेम है। और देखो यहाँ पर हिम है, उसका, उसकी, इसके। तो जब अननोन रहता है, जब मालूम नहीं रहता है कि कौन है, लड़का है कि लड़की है, उस वक्त हिम यूज होता है। फिर देखिए यहाँ पर क्या, व्हाट, कब, व्हेन, क्यों, व्हाई, कौन सा, म्हणजे कोणता, व्हिच, कहाँ, वेयर, किसका, हुज, whom, किसके, जिनके, जिसे। ये तीनों नाम में इसको यूज हो जाता है। अब ये सेंटेंसेस के बार बार आगे पीछे आने वाले ही है। तो ये मैं आप लोगों को ग्रुप में शेयर करूंगा। मराठी में भी बनाया हुआ है, हमारे पालो सर ने बना के दिए थे हम लोग को। तो ये इसमें हिंदी और उर्दू और अपना व्हाट्सएप लैंग्वेज में मैंने बना के रखा हो, तो वो आपको मैं शेयर करूंगा। ये अभी मत लिखिए। और ये जो लिखना है आपके नोटबुक के राइट हैंड साइड में, जैसा हम लोग ने उस दिन पहले दिन में एक्सरसाइज किए थे, उठना बैठना खाना पीना, उसके पेज के बाजू में लिखना है, नेक्स्ट पेज में, मतलब पीछे साइड में। इसके बाद में अब हम लोग ये समझेंगे कि प्रेजेंट टेंस में सबसे पहला क्या होता है। प्रेजेंट टेंस के अंदर जो पहला जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो तीन चीजें हमेशा दिमाग में रखना होता है। एक तो होता है सब्जेक्ट, एक तो होता है वर्ब, और एक होता है ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर काफी लोगों को कंफ्यूज हमेशा होते रहता है, इसकी वजह से आगे का जो पार्ट है, आगे का जो मामला है, वो लोग पूरा नहीं कर पाते। तो सबसे पहला आप टॉप हेडिंग लिखेंगे, प्रेजेंट टेंस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। समय है हमारे पास ना, क्या टाइम हुआ है? है। तो हम लोग आज जो है क्या क्या सीखे हैं वो ध्यान दीजिए। टेंसेस हमारे पूरे 12 दिमाग के अंदर बैठे हुए, और अभी सोते हो उसको विजुअलाइज कर लीजिए। तो प्रेजेंट टेंस के होते हैं, पहला वाला जो प्रेजेंट टेंस है उसका हम लोग लिखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। चलिए लिख लीजिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस। आप समझ लीजिए कि हर एक टेंस के अंदर 4 टाइप के वाक्य बनेंगे, 4 टाइप के सेंटेंस बनते हैं। पहला जो होता है उसको अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं, दूसरा जो होता है उसको नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, और तीसरा होता है वो इंट्रोगेटिव, और उसी में एक प्रश्नवाचक है, उसको WH वर्ड या WH सेंटेंस बोलते हैं। अफर्मेटिव जो है वो सकारात्मक वाक्य है, मतलब वो खाना खाता है, ये सकारात्मक वाक्य हो गया। वो स्कूल जाता है, वो पानी पीता है, मैं कपड़े धोती हूँ, मैं खाना बनाती हूँ, मैं एक्सरसाइज करने जाती हूँ, मैं जिम जाती हूँ, मतलब ये है अफर्मेटिव, मतलब सकारात्मक वाक्य है वो, उसके अंदर ना का शब्द नहीं आया है। नकारात्मक वाक्य के अंदर नेगेटिव सेंटेंस उसको बोलते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस के अंदर नहीं का प्रयोग किया जाता है। वो खाना नहीं खाता है, वो स्कूल नहीं जाता है, वो मेरी बात नहीं सुनता है, वो गाना नहीं गाता है, वो मोबाइल नहीं देखता है। तो नहीं नहीं का यूज होगा इसके अंदर। और इंट्रोगेटिव में प्रश्न किया जाएगा, क्या तुम इंग्लिश सीखते हो, क्या तुम इंग्लिश बोलते हो, क्या तुम लिखते हो, क्या तुम जाते हो, क्या तुम बाजार जाते हो, क्या तुम कपड़े नहीं धोते, क्या तुम झूठ बोलते हो। मतलब यहाँ पर प्रश्न किया जाता है, इंट्रोगेटिव में प्रश्न किया जाता है, उसको बोलते हैं प्रश्नवाचक। और एक उसी के अंदर होता है WH। WH मतलब व्हाट, व्हेन, विच, वेयर से स्टार्ट हुए जो वर्ड्स रहते हैं उसको WH बोलते हैं। वो खाना क्यों खाता है, क्यों को क्या बोलेंगे, वाई, तो वाई से स्टार्ट होगा। वो खाना क्यों खाता है, वो कौन से स्कूल जाता है, वो कब उठता है, वो कब खाता है, मतलब कब, कैसे, कौन, ये जो वर्ड्स होते हैं उसको WH वर्ड बोलते हैं। अभी ये 4 टाइप के सेंटेंस हर इसमें आने वाले हैं, और हर एक की रेसिपी अलग है, हर एक की रेसिपी अलग है। अब वो हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। इतना समझिए कि 12 टेंस के अंदर हर इसमें 4 टाइप के रहने वाले हैं, और ऐसे 4 मल्टीप्लाइडेड में आप लोगों को 12 करेंगे तो हमारे सेंटेंसेस कितने बनेंगे, 48 सेंटेंस बनेंगे। 48 सेंटेंस बनने के बाद मामला जो है
अभी आपको सर थोड़ा सा बैक करो ना, वो प्रश्न लास्ट का WH वर्ड को क्या लिखना है? WH वर्ड को ये लीजिए, WH वर्ड सेंटेंसेस या तो क्वेश्चंस बोलते हैं उसको। ओके ठीक है, हो गया। हो गया, थैंक यू। अभी ध्यान दीजिए, हमारे टोटल सेंटेंस कितने हैं? टेंसेस 12 है, ध्यान दीजिए 12 है। 12 मल्टीप्लाइडेड बाय हम लोग हर टाइप के 4 सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे, तो टोटल हमारे हो जाएंगे 48 सेंटेंसेस, बराबर। हमारा एक रूल है कि हम अभी आपको कल क्रियापद देंगे, क्रियापद जो रेगुलर यूज होती है, उठना बैठना खाना पीना, जैसा आप लोगों ने हिंदी में लिखे थे उस दिन, उसको इंग्लिश में हम लोग देंगे। इंग्लिश का फर्स्ट फॉर्म क्या है, सेकंड फॉर्म क्या है और थर्ड फॉर्म क्या है। तो ऐसा हम लोग ने सिस्टम बना के रखा है कि 2 से 3 महीने में डेली 5 हम लोगों को याद करना है, 5 क्रियापद। तो 3 महीने के हिसाब से हमारे हो जाएंगे 450 क्रियापद हम लोग याद करेंगे। कितने? 450। 450 को अगर हम लोग 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे सेंटेंसेस बनेंगे कम से कम 21,600। कितने बनेंगे? 21,600 सेंटेंस बनाना हम सीख जाएंगे। तो फ्लुएंसी आएगी कि नहीं आएगी इसके अंदर? फ्लुएंसी आने के लिए आपको मैं सेंटेंसेस तो आपको बनाना आएगा ही, गारंटेड, 100% बॉन्ड पेपर के ऊपर मैं दे दूंगा। लेकिन अगर हम लोग ने 48 टाइप के रेसिपी, मतलब 48 टाइप के खाना बनाना सीख गए और राशन ही नहीं घर में, तो क्या पकाएंगे हम लोग? तो राशन जो आपको मैं देने वाला हूं वो वर्ब्स रहेंगे। क्या रहेंगे? वर्ब्स। क्या बोलते हैं उसको? वर्ब्स, क्रियापद। वर्ब्स आपको मैं कल उसमें ग्रुप में डाल दूंगा, वो रहेंगे रेगुलर वर्ब्स। उसके अंदर 60 वर्ब पहले मैं दे दूंगा, तो 60 वर्ब का जो टास्क है हम 1 हफ्ते में कंप्लीट करेंगे। सिर्फ 60 वर्ड का टास्क जो है वो 1 हफ्ते में कंप्लीट करेंगे, और फिर बाकी का जो टास्क है डेली 5-5 अगर याद करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन याद किए बगैर सोने का नहीं। भले 5 याद करो, 5 याद करो, 5 का रेगुलर करो। हम तो रेगुलर आप करेंगे ना, तो ये इतने सारे सेंटेंसेस आपको बनाने आ जाएंगे। 21,000 सेंटेंस अगर बनाना आ गया तो इंग्लिश में आप मास्टरी करेंगे। मास्टरी करने के लिए आपको खाली एक तकलीफ है, 5 क्रियापद, 5 वर्ब डेली याद करना है। बगैर याद किए हुए हम सोएंगे नहीं। खाना हम लोग बगैर याद किए खाते हैं कि नहीं? सुबह में नाश्ता खाते हैं, फिर दोपहर में खाना खाते हैं, टाइम होने के साथ में अपना दिमाग घूम जाता है कि आप लोग खाना खाने। उसके बाद में हम लोग शाम में चाय नाश्ता खाते हैं, फिर वापस रात में भी हम लोग खाना खाते हैं, डिनर करते हैं, और सोने के टाइम भी कुछ ना कुछ चपड़ चपड़ चालू रहता है, तो वह हम भूलते नहीं है। लेकिन हमारे जिंदगी को बनाने के लिए, हमारे लाइफ को अच्छी प्रमोट करने के लिए, हमारे अपने आप को, अपने पर्सनालिटी को निखारने के लिए हम सिर्फ 5 क्रिया याद करेंगे, सिर्फ 5 डेली। 3 महीने के बाद में आप देखेंगे आप किस मकाम पर रहे और आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलेंगे। फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए आपको प्रैक्टिस दी जाएगी बार बार, और जो भी हम लोग टास्क देंगे उस टास्क को कंप्लीट करें। क्योंकि मैं बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि मैंने कल जो बोला था, हालांकि मैं 5-5 सेंटेंसेस बोला था, लेकिन काफी लोगों ने 10-10 सेंटेंस बना दिए। दैट्स अ फैंटास्टिक मोमेंट, और वो बहुत अच्छा लगा मुझे देखकर। मतलब जो बोला उससे ज्यादा आप लोग कर रहे हैं, और यही एक्टिविटी, यही डेडिकेशंस अगर आपके साथ में रहेगा तो आप 100% इंग्लिश सीखेंगे। हम अब ये सेकंड डे आज हम लोग सेशन में, अभी तो मेन पिक्चर आना बाकी है। ये एक से दूसरे दिन के सेशन के अंदर आप लोगों के अंदर उत्सुकता मुझे दिख रही है कि आप वाकई लर्नर हो, और जो लर्नर होता है ना वो एक्सक्यूज नहीं कभी बताता। एक्सक्यूज दिखाने वाले, एक्सक्यूज करने वाले वो लर्नर नहीं होते, और जो लर्नर नहीं होता है वो विनर भी नहीं होता। क्योंकि विजेता कौन होता है? जो सीखता है।
विजेता वही कहलाता है जो सीखता है, और जो विजेता नहीं होता है वो सीखता नहीं। तो सीखने के लिए हम लोग ने आपको सारी टेक्निक्स अभी दे रहे हैं, उस टेक्निक्स के हिसाब से हम लोग प्रॉपरली हमारे ऊपर खड़े उतरे, और एक बार आप खड़े उतर गए इस चीज के अंदर, तो आपको कोई भी सीखने से लिए और आगे बढ़ने के लिए कोई भी रोक नहीं सकता। ये बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इतना आसानी से आपको सिखाऊंगा। और आपको एक अनाउंसमेंट आपको बताना चाहता हूँ, एक गुड न्यूज है सबके लिए। वी आर गोइंग टू लॉन्च आवर एप्लीकेशन। हमारा ब्राइट वे का एप्लीकेशन लॉन्च होने जा रहा है। उसके अंदर काफी कोर्सेस ऐसे हम लोग ला रहे हैं जो अच्छे अच्छे दिल्ली वगैरह के फैकल्टी है, आपको अपने बच्चे को फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक के लिए भी उसके अंदर ट्यूशन रहने वाली, ट्यूशंस भी रहेंगे, मोटिवेशंस रहेगा, ट्रेनिंग्स रहेंगे, काफी जितनी भी ट्रेनिंग्स हमारे पास है उसके अंदर सारी चीज आने वाली, एक करके। तो जो बंदा अटेंड नहीं कर पाता है तो वो ऑटोमेटिकली ऐप पे जाके उसको मिल जाएगा, वो ऐप पे जाके क्लिक करेगा, वो ऐप का जो भी अपने कोर्स का जो भी हमारे चार्जेस है वो तो रहने वाला है, वो आप लोगों को पता है कि लाइव का हम लोग ने चार्जेस क्या रखे हुए हैं। तो वो ऐप हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। वो ऐप की वजह से हमारे छोटे बच्चे से लेके बड़े लोगों तक, मतलब 5 साल के बच्चे से लेके 50 साल के ऊपर के लोगों के लिए सब है। उसके अंदर बेसिक, पूरा बेसिक इंग्लिश रहेगा, फिर बाद में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग रहेगा, कम्युनिकेशन स्किल्स रहेगा, फिर बाद में स्टेज डेयरिंग रहेगा, और पेरेंट के लिए भी बहुत सारे इसमें ट्रेनिंग रहेंगे। जैसे हम लोग ने सलाह यशस्वी पालक बनूया, ये मलाड में हम लोग ने कार्यक्रम किए थे, उसका पूरा ट्रेनिंग रहेगा। उसके बाद में हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप्स के बारे में बात होंगी कि कैसा हम लोग को रिलेशनशिप बनाना चाहिए, और उस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म कैसा करना चाहिए। और फिर बाद में कॉन्फ्लिक्ट जो होता है, टाइम मैनेजमेंट होता है, वो भी उसके अंदर आने वाले। मतलब बहुत सारे कोर्सेस ऐसे आने वाले जो खुद मेरे रहेंगे, और बाहर के जो मेंटर से मैंने बात किया हूँ, जैसे दिल्ली से मैंने बात किया, बॉम्बे में काफी एक्सपर्ट लोग हैं, अल्केमिस्ट वाले वगैरह है, जो उनके खाली क्लासेस के चार्जेस ही कम से कम 70-80 हजार रुपए लेते 12 के। तो ऐसे ऐसे लोगों से हम लोग टाइप कर रहे हैं। वो हम ऐप में मेरे ख्याल से ये महीने के एंड तक या तो फर्स्ट वीक ऑफ सेकेंड मंथ हम लॉन्च करेंगे। उसके ऊपर मेरा पूरा काम चल रहा है। तो ये आप लोगों की बहुत बड़ी गुड न्यूज है। और फिर आप आपके बच्चे के साथ में किधर भी ट्यूशन में जाने की जरूरत नहीं, आने की जरूरत नहीं, घर के अंदर उसको ऑन कर लीजिए और आप देख लीजिए कंप्लीट कर रहा है कि नहीं कर रहा। और सिस्टम उसके अंदर ऐसा भी करेंगे हम कि पेरेंट्स को पता चलेगा कि मेरा बच्चे ने कितना टाइम देखा है, वो वीडियो कितने बार देखा है, वो टास्क कंप्लीट किया है कि नहीं किया है, इसमें वो हुआ कि नहीं। और उसको अगर समझ में नहीं आया तो वो वीडियो जो है ना, वो 2 से 5 मर्तबा वो वापस से रिपीट कर सकता है। अक्सर बच्चों को मैथ्स का प्रॉब्लम रहता है, ज्योमेट्री का प्रॉब्लम होता है, अकाउंट्स का प्रॉब्लम होता है, वो लोग को फौरन से कैच नहीं कर पाते। तो वो ऐप ऐसा हम लोग बना रहे हैं कि जिसकी वजह से हमारे सारे लोगों को ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी लोग सीख रहे थे, सीबीएसई भी रहेगा, महाराष्ट्र बोर्ड भी रहेगा उसके अंदर। फिर यूपीएस की तैयारी के लिए भी हमारे पास कोर्सेज आने वाले, आईएएस की भी तैयारी के लिए हमारे कोर्सेज देंगे। फिर बाद में जो हम लोग जो नीट के लिए जो तैयारी करते हैं उसके भी कोर्सेज रहेंगे, इतने कम दाम में रहेंगे कि आप लोग भी देखते रह जाएंगे उसके। तो ये हम लोग करने वाले हैं बहुत ही जल्दी। आप लोगों की कृपा से, आप लोगों की दुआ चाहिए और आप लोगों को सपोर्ट चाहिए। सो वी आर गोइंग टू लॉन्च वेरी सून, वो हम लोग उसके अंदर सीखेंगे। तो आज जो हम लोग ने सीखा है उसको आप इम्प्लीमेंट कर लीजिए। आप भले से आप घर में बोलते रहिए अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डब्ल्यूएच 12 के 12 टेंसेस बार-बार बोलिए। किसी को बोले ये सिंपल है, ये तो कंटिन्यू है, ये वैसा है, तो दिमाग में आपके पूरा के पूरा 12 टेंसेस हमेशा के लिए याद रहेंगे। आप कभी भी भूल नहीं पाओगे। क्लियर है? तो आज मैं अभी आपको मैं दे देता हूँ उसके अंदर हमारे ग्रुप के अंदर आपको वर्ड्स का मैं वर्कशीट देता हूँ। अगर वो वर्कशीट आपकी मोबाइल में नहीं खुलती है तो आप WPS करके एक ऐप आता है, उसके अंदर पीडीएफ, एक्सेल शीट और वर्ड फाइल ये खुल जाते हैं। तो उसका भी मैं आपको भेज दूंगा कि WPS जो ऑफिस जो फ्री वाला है वो फ्री वाला ही लेना है। पेड वाला आपने को कुछ करना है, उसके अंदर एडिटिंग का काम करना है नहीं। तो फ्री वर्जन वाला है, तो वहां पर आपका एक्सेल शीट खुलेगा। एक्सेल शीट के बाद में आप वर्ड शीट भी खुल सकते हैं, और पीडीएफ कोई भी फाइल रहेगी उसके अंदर खुलेगी। किसी किसी के ऐप मोबाइल के अंदर वो खुलता नहीं, इसकी वजह से मैं वो बता रहा हूँ। WPS करके है किसी का ऑफिस, वो मैं यूज करता हूँ। तो ये आपको मैं अभी रात को भेज रहा हूँ।
हो सकता है रात में अगर लिखने का चांस है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप कल लिख लीजिए। लेकिन अभी जो मैं भेजूंगा ना वो आई यू वी दे ही शी इट हिज व्हाई व्हेन व्हिच वेयर होम हुज, ये अभी लिखना है, क्योंकि अभी मैं आपको वो वक्त दे रहा हूँ। वो आप बुक के बैक साइड में लिखेंगे, जहां पर हम लोगों ने कल परसों एक्सरसाइज किए थे, उठना बैठना खाना पीना, वहां पर आप लिखेंगे, ताकि हम लोग को बीच में ना लिखा जाए, बीच में फिर हम लोग ढूंढना पड़ेगा किधर करके। तो सीधा पलटी मार दिए तो पीछे के साइड में अपने को दिखा कि बाबा इसका मतलब ये है, और वहां पर हम लोग प्रैक्टिस करने के लिए आ जाएंगे। तो ये सेशन कैसा रहा आपका आज? बारह के 12 टेंसेस दिमाग में आ गए, और उस 12 के अंदर हम लोग सीखेंगे हर टाइप के 4 ये सेशन ऐसा रहा, जिस टाइम पे मैं प्रोमेट्रिक का एग्जाम दे रहा था, तो प्रोमेट्रिक के एग्जाम में क्या होता है एक्चुअल में, ये तो अभी चलो इसमें पता चल रहा है कि हाँ अभी माइंड पर लोड पड़ रहा है कि हाँ लाइव हम लोग सीख रहे हैं, बट जब वहाँ पे बैठे हुए होते हैं ना, प्रोमेट्रिक के एग्जाम में क्या होता है कि अभी जैसे हमारा इधर ऐसे वैसे हम लोग कर रहे हैं ना, कर नहीं सकते। प्रोमेट्रिक के एग्जाम अगर मैं कह रहा हूँ कि जिस टाइम से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे ना, अब तक हो गया, तो मैंने आपसे बताया सर कि मैंने कहा मेरा जो है प्रोमेट्रिक का एग्जाम क्लियर हो गया। अगर उस टाइम पे ये सारी चीजें मैं कंटिन्यूस करके चलता ना प्रॉपर, तो जो सेकंड आई है ना वो फर्स्ट में आने वाली थी। अभी एक एग्जाम हो रहा है मेरा, तो उसमें भी प्रोमेट्रिक का क्या है कि उसमें 6000 है, 6000 है, और जिसमें 600 माइनस करके हमें एक एक का क्वेश्चन, मान लीजिए अगर 5000 स्टूडेंट हैं, सबका 6000 तो वो नहीं दे पाएंगे, सबका अगर 600 भी अगर लेवल पे आ गया तो नंबर 1 रैंक उसी की आनी है यहाँ पे। अभी हमारा जो है मार्च अप्रैल मई तक में वो एग्जाम क्लियर हो पाएगा। जी जी जी। तो ये चीज क्या है कि इंग्लिश स्पीकिंग में जो है थोड़ा डिफरेंट भी है यहाँ की, और थोड़ा चेंजेस भी है, क्योंकि ये लोगों का क्या है कि इनकी एक अपनी अलग भाषा है, यहाँ पे इंग्लिश कम इस्तेमाल होती है, जो इंडिया वाले बंदे हैं वो ज्यादा करते हैं यहाँ पे, क्योंकि टोटल इंडिया है। जी जो आज का सेशन है, तो अभी ये अगर ऐसा कंटिन्यूस रहा ना, तो इंशाल्लाह। किसी का फोन बज रहा है क्या? कुछ आवाज आ रही थी। जी, फंटास्टिक फंटास्टिक। तो आज का जो हम लोग ने सेशन किए थे उसको इम्प्लीमेंट करना है, और बाकी के जो लोग हैं, जो काफी लोग ने अपने कैम्स ऑन नहीं किए हैं, तो कैम्स ऑन करने की कोशिश करिए। पोजीशन में बैठिए, आप आपको इधर उधर मूवमेंट मत कीजिए, क्योंकि आप एक बार बैठे ना तो उठने का नहीं। जैसे हम लोग लेक्चर के अंदर बैठते हैं ट्रेनिंग सेंटर के अंदर, तो हमको उठने को नहीं होता है। उठने को कब नहीं होगा? जब आप मेरे सामने बैठे रहे। नहीं तो अपना उठ के चले गए, कोई बोले उधर गया है तो बोले कि मिस्टर बोल रहा है एक काम करना था, पानी का गिलास तो लेके आ, पानी तो दे, तो उठ के चले गए वहां से। तो मेन जो पॉइंट्स है ना वो निकल के चला जाता है। तो कल हम लोग सीखने वाले वर्ब क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, और हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले कि सेंटेंस को किस तरह से यूज किया जाता है, और आइडेंटिफिकेशन क्या है, क्योंकि पहचान बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक टेंस की अलग अलग पहचान है, तो वो हम कल लेने वाले हैं टॉपिक्स। और मुझे जो लोग ग्रुप में अभी ज्वाइंट हुए, काफी लोग ने इंट्रोडक्शन मुझे भेजा नहीं है, मुझे पता नहीं, मेरे को नेम भी सेव नहीं है। और जितने लोग हमारे अभी सेशन के अंदर अटेंड किए, जो लोग लकी ड्रॉ से हैं, वो मुझे एक बार पर्सनल मैसेज कर लीजिए, क्योंकि हम लोग लकी ड्रॉ से हैं, तो उनको रजिस्टर करके मुझे रखना होगा, ठीक है? क्योंकि कंपनी का हमारा ऑडिट होता है, तो उसके अंदर हम लोग बताते हैं कि हम लोग ने इतने इतने लोगों को ये किया हुआ है। तो आप लोग अपना नाम और सिटी मुझे पर्सनली फिर से भेज दीजिए। जो लोग को लकी ड्रॉ में 10 लोगों को 3600 का वो कूपन मिला था, वो से 3600 हमारे कोर्स की फीस वो आपसे नहीं ली जाएंगी, जो 10 लोगों को हम लोगों ने वहां पर गिफ्ट दिया था वहां पर कंपनी की तरफ से। तो वो मुझे पर्सनल मैसेज करेंगे कि सर मेरा लकी ड्रॉ में है, और ये है मेरा नाम। तो मेरे पास जो लिस्ट आई है न्यूली जी ने मुझे दिए थे, वो मुझे थोड़ा एक बार कंफर्म करना होगा, तो उसके हिसाब से फिर आगे सेशन चलते रहेंगे। लेकिन जो टास्क दिया हो उसको पूरा करना है। 12 के 12 दिमाग में बैठ गया, ठीक है? एनी क्वेश्चन? तो आज के लिए इतना काफी है, और बाकी हम लोग देखेंगे कल। हाँ, कुछ बोलना चाहते हैं श्रावण के पापा? श्रावण के पापा कुछ बोलना चाह रहे हैं? आज का जो प्रैक्टिस करना है, वो जो आप बोल रहे थे ग्रुप पे मिलेगा, वो ग्रुप कौन सा है हमको?
आइडिया नहीं आप इसका। ग्रुप में है नहीं, ग्रुप में नहीं आप? नहीं मुझे एक बार, हाँ मेरा नंबर आपके पास है? नहीं है। चलिए नंबर लीजिए। Yes. 87 87 88 88 50 50 45 45 77। 77। थैंक यू सर। ठीक है, मुझे ये नंबर आप सेव कर लीजिए और मुझे हाई भेज दीजिए, और फिर उस ग्रुप में ओके। आपको ये करेंगे। और आपको, आप किसके थ्रू, आपने संजय सर के थ्रू आए, कैसे आए, तो मुझे वो भी बता दीजिए मैसेज। ठीक है, ओके। तो टास्क कल का हम लोग देखेंगे। आज हम लोग अभी रात को आपको मैं भेज रहा हूँ IUV दे, लिख लीजिए अभी अगर वक्त है तो, नहीं तो फिर कल मॉर्निंग में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए हम लोग क्लास को कल कंटिन्यू करेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, गुड बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट। all of you. Good night, sweet dream. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।